Assalamu alaikum friends. I hope you are all well. You remember in the last video we read lesson 1 fair dealing of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now we are doing the exercise of this lesson. Let's get started and jump to the book. चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं. वोकैबुलरी का मतलब है ज़हीरा अल्फाज. चलिए नीचे देखते हैं. मैच द वर्ड्स विद मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट. अल्फाज को सबक में मानी के साथ मिला दें. पहला लफ्ज़ है बिजनेस. बिजनेस का मतलब है कारोबार. चलिए आगे देखते हैं. ऑक्यूपेशन का मतलब है पेशा. ट्रेड का मतलब है तिजारत और इंडस्ट्री का मतलब है सनत. तो बिजनेस ट्रेड के साथ मिलेगा. चलिए नीचे देखते हैं. फेमस का मतलब है मशहूर. प्रोमिनेंट का मतलब है नुमाया. वेल नाउन का मतलब है अच्छा मशहूर और रिनोव्ड का मतलब है मरूफ. फेमस वेल नाउन के साथ मिलेगा. चलिए नीचे देखते हैं. फ्रेंड्स का मतलब है दोस्त. कंपेनियंस का मतलब है साथी. हेल्पर्स का मतलब है मददगार और ग्रुप्स का मतलब है ग्रुप. तो फ्रेंड्स कंपेनियंस के साथ मिलेगा. आगे है इंसिडेंट्स का मतलब है वाक़यात. हैपनिंग्स का मतलब है वाक़यात. इवेंट्स का मतलब है तकरीबात और सर्कमस्टेंसेस का मतलब है हालात. तो इंसिडेंट्स हैपनिंग्स के साथ मिलेगा. आगे है ट्रस्टवर्थी का मतलब है काबिल एतबार. लॉयल का मतलब है वफादार. रिस्पॉन्सिबल का मतलब है जिम्मेदार. रिलायबल का मतलब है काबिल एतमाद. तो ट्रस्टवर्थी रिलायबल से मिलेगा. रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन. समझने के लिए पढ़ना. रीड पैराग्राफ नंबर 1 ऑफ दिस लेसन एंड आइडेंटिफाई. सबक का पैराग्राफ 1 पढ़ें और शनाख्त करें. टॉपिक सेंटेंस. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was always fair and honest in his dealing with other people even before his nubuwwat. Supporting details. Examples. He was known as the truthful and the trustworthy. In his young age, he became a trader. He traded with other people's money with great care and was very successful. The people of Makkah were much impressed by his trading skills and fair dealing. They had complete trust in him. It was his honesty and fair dealing in business that impressed Hazrat Khadija radhiyallahu ta'ala anha. She first entrusted her enterprise to him and later married him. All the people who had done business dealing with him before his nubuwwat had always praised his honesty and fair dealing. Section B. Encircle and write the words in paragraph 1 that connect the sentences within this paragraph. पहले पैराग्राफ में उन लफ्ज़ों के गिर्द दायरा लगाएं और उन्हें यहाँ लिखें जो जुमलों को एक दूसरे से जोड़ते हैं. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was always fair and honest in his dealing with other people even before his nubuwwat. He was known as the truthful and the trustworthy. In his young age, he became a trader. He traded with other people's money with great care and was very successful. The people of Makkah were much impressed by his trading skills and fair dealing. They had complete trust in him. It was his honesty and fair dealing in business that impressed Hazrat Khadija radhiyallahu ta'ala anha. She first entrusted her enterprise to him and later married him. All the people who had done business dealing with him before his nubuwwat had always praised his honesty and fair dealing. Answer the following questions. मंदरजाल सवालात के जवाब दें. Question number 1. What made the Rasul sallallahu alaihi wasallam famous even before his nubuwwat?
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से पहले ही किस चीज़ ने मशहूर किया? आंसर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was always fair and honest in his dealing with other people even before his नबूवत. He was known as the truthful and the trustworthy. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत से पहले ही दूसरे लोगों के साथ अपने मामलात में हमेशा मुनसिफाना और ईमानदार रहते थे और सच्चे और काबिल एतमाद के तौर पर जाने जाते थे. क्वेश्चन नंबर 2. Why did Hazrat Hatija रज़ियल्लाहु ताला अन्हा decide to marry Hazrat Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हज़रत हतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी का फैसला क्यों किया? आंसर, it was his honesty and fair dealing in business that impressed हज़रत हतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा. ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और कारोबार में मुनसिफाना सलूक था जिसने हज़रत हतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मुतासिर किया. क्वेश्चन नंबर 3. Why did the Rasul sallallahu alaihi wasallam instruct his companions to be fair in business dealing? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को कारोबारी मामलात में मुनसिफाना होने की हदायत क्यों दी? आंसर, the Rasul sallallahu alaihi wasallam instructed his companions to be fair in business dealing because the truthful and the trustworthy merchant is associated with Anbiya, the uprights and the martyrs. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को हदायत की कि वो कारोबारी मामलात में मुनसिफाना हो क्योंकि सच्चा और अमानतदार ताजिर का हशर अंबिया, सद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा. क्वेश्चन नंबर 4. What is the impact of avoiding doubtful things in business dealing? कारोबारी मामलात में मशकूक चीज़ों से बचने का क्या असर है? आंसर, he who guards against doubtful things keep his religion and his honor blameless, but he who falls into doubtful things falls into what is unlawful. तिरमिज़ी. जो शख्स मशकूक चीज़ों से हिफाजत करता है वो अपने मज़हब और अपनी इज्जत को बेऐब रखता है, लेकिन जो मुश्तबा चीज़ों में पड़ जाता है वो गैर कानूनी हरकत में गिर पड़ता है. तिरमिज़ी. क्वेश्चन नंबर 5. How can be honest and fair in our dealing? हम अपने मामलात में ईमानदार और मुनसिफ कैसे बन सकते हैं? आंसर, we should follow the noble of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam in our dealing and we should keep in mind that we are answerable to Allah for all acts. हमें अपने मामलात में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी चाहिए और हमें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि हम अपने तमाम कामों के लिए अल्लाह के सामने जवाबदेह हैं. सेक्शन डी. फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स. खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज लगाकर पुर करें. नंबर 1. In his young age, he became a trader. Number 2. The people of Makkah were much impressed by his trading skills. Number 3. The truthful and the trustworthy merchant is associated with Anbiya, the uprights and the martyrs. Number 4. He who guards against doubtful things keep his religion and his honor blameless. Number 5. Allah shows mercy to the man who is kind when he sells, when he buys and when he make a claim. In this section we will read dictionary skills. Dictionary की महारात. A dictionary is a collection of words in one or more specific languages listed alphabetically with usage
definitions, pronunciation and other information. एक डिक्शनरी एक या कई महसूस ज़बानों के हरूफ तहजी की तरतीब से दिए गए अल्फाज का मजमूआ होती है जिसमें इस्तेमाल, तारीफ़ें, तलफ़्फ़ुज़ और दीगर मालूमात दी गई होती है. Do you have a dictionary? Yes, I have a dictionary. Have you used a dictionary before? Yes, I used a dictionary before. How are words arranged in a dictionary? The words listed alphabetically in a dictionary. Guide words. रहनुमा अल्फाज. There are two bold-faced guide words at the top of each page. Guide words help you find the word you want to look up. The guide words on the right shows the last entry on that page. डिक्शनरी की हर सफ़े के ऊपर बोल्ड हरूफ में छपे हुए वो रहनुमा अल्फाज होते हैं. रहनुमा अल्फाज इस लफ्ज़ को तलाश करने में आपकी मदद करते हैं जिसे आप तलाश करना चाहते हैं. दाएं तरफ तहरीर किया गया रहनुमा लफ्ज़ इस सफ़े के आखिरी अंदराज को जाहिर करता है. एंट्री वर्ड्स, अल्फाज का अंदराज. An entry word is the word that you look up in the dictionary. Entry words are printed in bold and they are listed in alphabetical order. अंदराज का लफ्ज़ वो लफ्ज़ है जिसे आप डिक्शनरी में तलाश करते हैं. अंदराजी लफ्ज़ बोल्ड में छापे होते हैं और इन्हें हरूफ तहजी के मुताबिक तरतीब दिया जाता है. सेक्शन ई. Identify guide words and entry words in the sample dictionary page. नमूना के तौर पर दिए गए डिक्शनरी के सफ़े में से रहनुमा अल्फाज और अंदराजी अल्फाज की शनाख्त करें. गाइड वर्ड्स. एक, एसिड रॉक. एंट्री वर्ड्स. एक, एकिंग, एकी. अचीव, अचीवेबल, अचीवर, अचीवमेंट, अचीवमेंट एज. एक्रोमेटिक, एक्रोमेटिसिटी, एक्रोमेटिज्म. एसिड, एसिडली, एसिड ड्रॉप, एसिड हेड, एसिडिक, एसिडिटी, एसिड रॉक. सेक्शन एफ. गिव बोथ द गाइड वर्ड्स ऑन द फॉलोइंग पेजेस ऑफ योर डिक्शनरी. अपनी डिक्शनरी के दर्जा झैल सफ़ात पर दिए गए दोनों रहनुमा अल्फाज तहरीर करें. इन माई डिक्शनरी, पेज नंबर 10, बेल, घंटी. पेज नंबर 58, गोल्डन, सुनहरी. पेज नंबर 97, पार्क, खड़ी करना. पेज नंबर 112, वॉल, दीवार. सेक्शन जी. Find the meaning of the following words in the dictionary. डिक्शनरी में से दर्जा झैल अल्फाज के मानी तलाश करें. वर्ड्स, मीनिंग्स, मानी. एंटरप्राइज, बिजनेस, एंडिवर, प्रोजेक्ट, कारोबारी अक़दाम. रिग्रेट, लामेंट, रिपेंट, रिमोर्स, पछताना. एक्सचेंज, बार्गेन, बार्टर, कन्वर्शन, तबादला. प्रोटेक्ट, डिमोन्स्ट्रेट, डिसअप्रूव, रेसिस्टेंस, एहतजाज करना. रिवार्ड, प्राइज, रीपे, ग्रेटिफिकेशन, इनाम देना. Sacrifice, oblation, forfeit, surrender, कुर्बान करना. Bridle, rein, restrain, harness, लगाम. That's all in this video. In the next video, we will read grammar. If you got help from my video, please subscribe my channel. Smash the bell icon for more videos. Okay friends, I will see you in the next one.
Bye.